لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہمارے شیخ کامل، میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری محفلوں کو سجانے کے لیے منتخب کیا. ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ایک شاعر کی زبان میں ثنائے آقا جی جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے. ثنائے آقا جی جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے. ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے ہمارے آقا جی گزرتے رہیں گے. حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی جو آپ کی محبت میں مرتے رہیں گے. حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی جو آپ کی محبت میں مرتے رہیں گے. اور وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے، وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر سرکار میں گزرتے رہیں گے. میں نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی، یوں تو سارا قرآن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے. جیسے وہ ظہوری صاحب نے کہا تھا، اسی کی ظہوری تے ساڑا کی بیان ہے، سارے ہاں تو وڈا تے نعت خاں قرآن ہے. اس آیت پاک میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شانیں بیان کی ہیں جو ہمارے لیے، امتیوں کے لیے بے مثال شانیں ہیں. آپ کے متعلق ارشاد پاک فرمایا کہ بے شک تم میں وہ رسول تشریف لائے جنہیں تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، جنہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا بڑا تکلیف دہ ہے، اور تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور مومنوں پر بڑے رؤوف اور رحیم. اس آیت پاک کو زبانی یاد کر لیں. یہ بڑی عظمت والی آقا کریم کی شانیں جس آیت پاک میں ہیں وہ شفا ہی شفا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد اس آیت پاک کو پڑھا کرتے تھے مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے. تو ایک چھپائے بھی تھے، سارے دوستیوں کو تقسیم بھی کروائے تھے. جی وظیفہ روزانہ کا سے مجھے یہ عطا بھی ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا بڑا اچھا ہے بھی آپ نے اس کی یاد دہانی کرائی. سب دوستوں کو تقسیم بھی کیے تھے. جی پمفلٹ ملے ہوئے ہیں جی ہمیں ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ کے درمیان میں یہ پڑھا کریں، اور یہ مدینہ پاک کی عطا ہے، اس میں بہت بڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. تو یقیناً یہ ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے بغداد شریف میں. ان کے مدرسے میں ایک صاحب تشریف لائے، ان کا نام تھا ابو بکر شبلی. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھڑے ہوئے اور ابو بکر شبلی کے پیشانی پر بوسہ دیا، ان کا استقبال کیا کھڑے ہو کر. کچھ علماء حضرات یا زمانے کے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت وقت کے خلیفہ آئے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تو یہ ابو بکر شبلی کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، تو آپ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی عمل کیا جو میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. کہ میری خواب میں آقا کریم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا
کہ तुम्हारी महफिल में एक जन्नती शख्स आएगा, उसका इस्तकबाल यूं करना जैसे आपने उन अबू बकर शिबली की पेशानी पर बोसा दिया। जब वो तशरीफ़ फरमा हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने दरख्वास्त की कि जनाब उनका क्या अमल है जो ये इनको रुतबा आपने अपनी बारगाह में इतना दिया कि इनकी पेशानी पर बोसा। तो आपने इरशाद फरमाया ये आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये हर नमाज के बाद मदीना पाक की तरफ रुख करके ये आयत करीमा पढ़ता है और इसका ये इनाम व कराम इसको दिया गया है। तो अंदाज़ा लगाइए हमारे आका करीम की शान कितनी बुलंद हैं, हमारे मुर्शिदान करीम का हम पे कितना करम है कि इन्हीं का सदका हमें ये मोहब्बतें नसीब हुई हैं। हम कभी कभी गौर करता हूँ मैं कि हमारी औकात क्या है, कहाँ के रहने वाले, किधर से चले, कौन जानता था हमें, किसका सदका हमें अब दुनिया जानती है। ये माइक पकड़ के कभी बोलना नहीं आता था, कोई बात करनी दुनियादारी में नहीं आती थी, लेकिन किसके सदका हमें ये ताकतें नसीब हुई हैं। जब हुक्म फरमाते हैं ज़ुबान खुद ब खुद अच्छी बातें कहना शुरू कर देती है, कोई नात शरीफ पढ़ रहा है, कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान कर रहा है, तो ये इसी आस्ताने का सदका है। गौर किया कीजिए, कम अज़ कम मैं तो अपने मतलब गौर करता हूँ, बड़ा नाअहल बड़ा नकम्मा, लेकिन जब से इस आस्ताने से वो एक जुड़ी है, तार जुड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, आका करीम की मोहब्बत दिलों में उजागर होती रहती है। और ये फैज़ सिर्फ यही नहीं, जहाँ मौका मिलता है यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे होते हैं, संगी भाई सब आका करीम का मिलकर जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने जहाँ जहाँ मौका मिलता है, पाकिस्तान में भी अमेरिका में भी जब भी महफिलें सजाते हैं तो यही मोहब्बतें हम बांटते हैं। मेरा मामूल है जब पाकिस्तान में होता हूँ, ये मैं को खुद सताई अपनी वो तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जो बात अच्छी वो बयान करनी चाहिए कि इस आस्ताने की निस्बत से फजर की नमाज के बाद रोज़ाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मैं लोगों को सुनाता हूँ और बड़ी खुशी होती है, बड़े फ़ख्र के साथ अपने मुर्शिद पाक का भी जिक्र करते हैं कि उनके सदक़े हमें ये तौफ़ीक नसीब हुई अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब पाक और आपकी बातें लोगों तक बयान करना। देखिए अहादीस मुबारका सुनना या सुनाना, अदब सीखना चाहिए, अदब एहतराम यहीं से हमें मिलता है, इन कदमैन से मिलता है। हमें बात करना आती थी लेकिन सलीका नहीं था। आज हम नात शरीफ पढ़ने लगते हैं, मेरी किताब नातों की जेब में है, जब खोलता हूँ तो बार बार अल्फाज को तब्दील करना पड़ता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, चूँकि शायरों ने अपने अंदाज में लिखा, किसी ने तो ऐसे करके हम उसको तब्दील कर करके लिखते हैं। और कोई बात करनी हो मदीना पाक से मुतल्लिक़, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतल्लिक़, तो बड़ा रुक रुक के सोच सोच के ये बात करनी पड़ती है, कहीं खिलाफ़े अदब कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए। तो यकीन जानिए ये एहतराम, ये अदब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ से हमें मिला है। ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी तरीक़त हमारे सिलसिले की एक किताब मैंने रखी है औलिया पाकिस्तान, आप सब भी औलिया कराम के तज़किरे पढ़ा करें, रूह ताज़ा हो जाती है। उसमें ख़ास तौर पर हमारे ख्वाजा साहब का तज़किरा बड़े अच्छे अंदाज में, आपके रूहानी जो मामलात हैं और आपकी जो तालीमात हैं वो तकरीबन 13-14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कभी मौका मिला, चूँकि ज़बानी इतने याद नहीं रहते, लेकिन मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो बड़ी रूहानी तरबियत है। उनमें 3 चीज़ें तो आपने अव्वल बयान की हैं, जिनमें आपने इरशाद फरमाया मुदावमत, मुखालफत, मुवाफ़क़त। मुदावमत से मुराद हमेशा किसी चीज़ का बयान करते रहना, ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र पे हमेशगी कायम रखना। मुखालफत नफ्स अमारा की, जो हमारा दुश्मन दुनिया की तरफ खींचता है, दुनिया के मामलात की तरफ खींचता है। कितना प्यारा दर्स है, 2-3 अल्फाज में कितनी बड़ी रहनुमाई की, अगर कोई गौर करने वाला हो, समेटने वाला हो। और तीसरी आपने जो इरशाद फरमाई मुवाफ़क़त,
शरीयत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत की पाबंदी ज़ाहिर व बातन में भी, हर लिहाज से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी। ये 3 दर्स जो हैं हमारे ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने बानी तरीक़त। बहरहाल इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर अर्ज़ करूँगा। अभी चंद बातें मैं अर्ज़ करता हूँ मदीना पाक की शान के मुतल्लिक़ और अदब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि। जब हदीस मुबारक सुनाई जाए, सुनी जाए, तो हमारे लिए मशअल राह हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। मदीना पाक की शान हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम समेट सकें। इसी पे गौर कीजिए कि आपने इसको अपना हमेशा के लिए मस्कन पसंद फरमाया मदीना पाक को। मदीना पाक को हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बतें हैं। अपनी हयात मुबारक में जब आप तशरीफ़ लाते, जंगों पर वापस आते, तो अपनी सवारियों को मज़ीद तेज़ कर लिया जाता कि मदीना पाक सामने नज़र आ रहा है। और मदीना पाक की खाक का जो जिस्मों पे पड़ती थी उसको ना झाड़ने का हुक्म था। इस खाक में शफा है अल्लाह करीम ने रखी हुई। और हमें हुक्म है कि मदीना पाक जब हाज़िरी हो तो वहाँ के लोगों से उलझना नहीं। कुछ भी ज़्यादती कर लें वो हमारे साथ, कुछ कह जाएं, पहले तो वो लोग हैं ही बड़े शफीक, क्योंकि उनकी निस्बतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीक ज़ात से हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो जो बाज़ार में जाते हुए तो आपका हुक्म है लोगों से उलझना नहीं, कोई इनकी शान में कोई गुस्ताखाना बात नहीं करनी। हत्ता कि आपने ये भी इरशाद फरमा दिया कहीं मदीना पाक की गलियों में किसी होटल में बैठ के किसी जगह आप दही खा रहे हैं और वो दही खट्टा महसूस हो रहा है, उसका इजहार नहीं करना कि ये दही खट्टा है, उसकी निस्बत मदीना पाक से है। यानी ये बातें हैं अदब व एहतराम की, मोहब्बत की। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी पाक में दरस हदीस मुबारक दे रहे हैं। लोगों ने देखा आपका रंग तब्दील हो रहा है, तकलीफ़ में महसूस हो रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन आप दर्स जारी रखे हुए हैं। जो ही दरस हदीस मुबारक ख़त्म होता है लोग करीब आते हैं, पूछते हैं या हज़रत क्या हुआ? आप इरशाद फरमाते हैं मेरे कपड़ों में एक बिच्छू है जिसने मुझे 7 दफ़ा डंक मारा है। लेकिन कुर्बान जाएं, जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो वहाँ पे आपने गवारा ना किया कि मैं उस बात को मुनक़ते करूँ और अपनी ज़ात को तरजीह दूँ। ये अदब व एहतराम हमें मिलता है बुज़ुर्गों की शानों से। जब मदीना पाक की गलियों में आप चलते तो दीवारों के साथ लग लग के हत्ता के कपड़े फट जाते। लोग पूछते या हज़रत ये क्या मामला है, गलियों में क्यों नहीं चलते? तो आप फरमाते मुझे डर है कि कहीं मेरे कदम उस जगह पे ना आ जाएं जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। कितना सबक हमें मिलता है मदीना पाक की शान और अदब व एहतराम। वक़्त मुख्तसर होता है, इंशाअल्लाह फिर किस वक़्त मज़ीद ये बातें बयान करेंगे। बहरहाल हमने जो अदब व एहतराम सीखा इस बारगाह से सीखा। मुर्शिद दुआरे उत्ते मुहकम लाइए चौका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। सब कुछ हासिल होता है यहीं से। मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए अल्लाह के। ये वो मुंतखब लोग हैं जो फैज़ बांटने आए हैं। यहाँ के लोग जो इंग्लैंड वाले हैं बड़े खुश नसीब हैं। इनके दीदार से भी आँखों को मुनव्वर कीजिए, इनके फैज़ के हासिल कीजिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ अदब व एहतराम का जो रिश्ता है वो ज़रूर इस्तवार कीजिए, वहीं से सब कुछ हासिल होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।